This conference will now be recorded. नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारंभं करिष्यामि प्रसन्नां भव सर्वदा. हरि ओम. Very sorry for the late start because of some technical difficulties. Let us come to the subject and let us start one case discussion. This is a 57-year-old smoker male patient. Past history, motor vehicle accident approximately say 8 years ago, and that was like whiplash injury, but backward and then forward extension and flexion was there of cervical spine. He head hit to the headrest with great impact, and then he flexed his cervical spine after that. Around say 40 years ago, 40-50 years ago, he had been to tonsillectomy. So because of tonsillitis, he had been to tonsillectomy. He suffered from hypertension, and it is controlled by some allopathic medicines. So his main complaint was neck pain, especially from C4 to C7 level, particularly on left side, and which radiated to left elbow as well as up to occipital region, causing headache. Then one more important thing was he had foot drop on left side. A slight low back pain was there, extending to left buttock, then lateral aspect of left thigh, calf, etc., etc. That is sciatic pain. His neck and left leg problem were completely depressing. He could not see light at the end of the tunnel. Basically, he was suffering from cervical or neck pain, and secondary, he was suffering from sciatic pain, and everybody was treating his sciatic pain, but many a times he asked the doctor to see his cervical spine also. And the main history was motor vehicle accident. His all other reflexes were all normal. That's all. This is the main and important thing. See, above patella of left thigh, the circumference was 15 centimeter above patella. 1 centimeter less than right side. That is the main issue. So at left side thigh level, there was muscle wasting. At around 12 centimeter below the patella, it was around 2 centimeter less than right side. So left sided muscle wasting was there. That is one of the main observations. And SLR was say around 40 degree at left level, left side. Because of say low back pain, pulling sensation was there on elevation of left leg at SLR level. Hip flexion, bilateral hip flexion was causing mild back pain. That's it. Otherwise, everything was normal. That's it. So this is the case. Now, his imaging was slightly
Imaging was okay at every level. Just simple C4, C5 nerve root foramen was slightly blocked. Nothing else was found in say MRI. Hello, sir. Have you changed the slide? No, same No. slide is Okay, sir. Okay. I changed it once, but again I came to first slide only. Okay, sir. Okay. MRI of lumbar spine showed degenerative changes in facet joint and vertebral body margins. But at lumbar level, there was no nerve compression. At cervical spine level, at C4, C5 and C5, C6 level, there was nerve compression. This is the case related to cervical myelopathy. Again, I would like to tell you, in this case, Ayurveda works very well. In cervical myelopathy, left-sided arm symptoms and left-sided foot drop was there. So, differential diagnosis of cervical nerve root impingement was there, and left-sided L5 nerve root irritation was there, but it was very much milder. In MRI also, it was not at all significant. So this case was very well explained to me by my teacher, who is an orthopedic surgeon, and he told me about cervical myelopathy. This was the case I treated when I was doing my MD final. So this showed at say C4, C5 level, it was diffuse annular bulge of disc, large left posterolateral osteophyte formation was there, indenting the thecal sac anteriorly with spinal canal stenosis and left C4, C5 intervertebral foramen stenosis. So that was the diagnosis. In this, if this diagnosis is there, then orthopedic surgeon or mainly neurosurgeon advises the patient to get operated. But remember, it has spondylitic myelopathy has diverse clinical presentation without any other pathological signs also. It is mixture of abnormalities of both upper and lower extremities with possible subtle gait and with mainly upper motor neuron dysfunction. So in cervical myelopathy, you have to treat it as Manyastambha. If you start treating these type of patient as Manyastambha, it gives you good result. So what to do in Manyastambha? In cervical myelopathy, every time remember one important thing, that is Kukkutanda प्लस सैंधव, ये आपको एक साथ मिलाना है अच्छी तरह से. कुक्कुटांडा और सेंधा नमक लीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक 2 चिमटी एक कुक्कुटांडा के लिए, और वो अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है. उसके लिए एक ब्लेंडर भी आता है, या आप सिर्फ चम्मच से भी उसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हो. ये करने के बाद आपको उसका मसाज रेगुलरली मसाज उसका करना है. ये करके बाद में आपको वालुका पोटली स्वेद देना है.
तुरंत इसके बाद स्नान नहीं करना है। वृक्ष स्वेदन प्लस अंडा और सेंधा नमक, इसके मिश्रण का लेप, उसे थोड़ा सा स्नेहन और उसका पूरा लेप लगाकर रखना है। इसमें हम पहले वालुका पोटली स्वेद देते हैं जिससे स्तंभ थोड़ा कम होता है। उसके बाद अंडे का मर्दन बहुत हल्के हाथ से ये किया जाता है। उसके बाद वो पेंट किया जाता है जस्ट, और आप हार्डली एक 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स अगर रखो तो वो पूरा सूख जाता है। ये आप 45 मिनट से 1 घंटे तक रखिए और उसके बाद गर्म पानी से स्नान कीजिए। काफी अच्छा रिजल्ट सर्वाइकल माइलोपैथी में सिर्फ कुक्कुटांड के आलेपन से होता है। मन्या स्तंभ में आप इसका प्रयोग करें। भाव प्रकाश में इसका वर्णन किया गया है, ये भाव प्रकाश का संदर्भ है। इसके साथ साथ हम बलामूल क्वाथ और तोयम ससैंधव बलामूल क्वाथ देते हैं। जैसे एरंड स्नेह हमने देखा था लंबार स्पाइन में, उसी तरह से बलामूल क्वाथ ये मन्या स्तंभ में दिया जाता है। बलामूल श्रुतम तोयम सैंधवेन समन्वितम बाहु शोष करे वाते मन्या स्तंभे च शस्यते। वैशज्य रत्नावली में यह सूत्र आया हुआ है। आपको जानकर अचरज होगा कि बहुत से बला रिलेटेड क्वाथ है जो मन्या स्तंभ में दिए जाते हैं। इसीलिए किसी भी तरह का मन्या स्तंभ, शूल, शोथ, शोष, कोई भी पेशेंट आपके पास आए, सामावस्था या निरामावस्था कुछ भी हो, उसमें आप बलारिष्ट या बला के विविध चूर्णों का प्रयोग करें। आपको ऐसे लगेगा कि ये सिर्फ निरामावस्था में बला दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। मन्या स्तंभ सामावस्था में भी बलामूल आप सैंधव के साथ दे सकते हैं, आप मधु के साथ दे सकते हैं। बला के अलग अलग 12-13 कल्प है जो हम साम और निराम अवस्था में अवस्थानुरूप हम यूज कर सकते हैं। सो हियर द ड्रग ऑफ चॉइस इज बला। अलॉन्ग विद दैट, ये होने के बाद ये 3 से 7 दिन करने के बाद अब अभ्यंतर इसमें समीर पन्नग यूज करते हैं। ये 3 से 7 दिन देने के बाद वहां वेदना शमन भी होता है और काफी हद तक स्तंभ कम हो जाता है। ये होने के बाद 7 दिन के बाद हम इसमें नस्य चालू करते हैं। नस्य चालू इसमें करना चाहिए। ब्रूहण नस्य का प्रयोग इसमें किया जाता है या करना होगा। 7 दिन के बाद आपको उपनाह या पिंड स्वेद ये करना चाहिए। 7 दिनों तक आपको षष्टिकशाली पिंड स्वेद नहीं करना है, आपको सिर्फ कुक्कुटांड का आलेपन करना चाहिए। 7 दिन के बाद आप पिंड स्वेद कर सकते हो। पिंड स्वेद करते वक्त आपको षष्टिकशाली पिंड स्वेद करना चाहिए और जिस क्वाथ में हम षष्टिकशाली डुबोते हैं, षष्टिकशाली पिंड डुबोते हैं, वो बलामूल का ही लेना चाहिए। नस्य, ब्रूहण नस्य इसमें दिया जाता है। और सबसे अच्छा जो मैंने अभी कहा कि मसल वेस्टिंग अगर हो, मसल वेस्टिंग आपको दूर दूर से दिखाई दे, तो तैलम संकुचिते अभ्यंगे माश सैंधव साधितम बाहु शीर्षगते वाते नस्यम पानम च औत्तर भक्तिकम। अर्थात माश और सैंधव साधित तेल का प्रयोग संकुचित अंग में किया जाता है। संकुचित अंग मतलब मसल वेस्टिंग में माश तेल का ब्रूहण नस्य इसमें करें। घृत, तेल, मांसरस इत्यादियों का प्रयोग भी नस्यार्थ किया जाता है। और भी एक बहुत ही अप्रतिम प्रयोग इसमें आया है और वो है कल्याणक घृत का प्रयोग। हम कार्पासास्थ्यादि तेल का भी प्रयोग करते हैं जो कफघ्न है। बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि कार्पासास्थ्यादि तेल ये सिर्फ वातघ्न है, पर नहीं, वात कफघ्न ऐसा ये तेल है। इसीलिए मन्या स्तंभ में कफ संश्लिष्टता रहती है, तब हम
कार्पस हस्तेदी तेल का नस्य ये दे सकते हैं। अगर स्तंभ प्रधान संप्राप्ति रहे तो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगा, जो शोल्डर जॉइंट में भी मैंने कहा था, ये स्तंभ अगर होगा तो बलागुड़ुच्चादि, नारायण, विषगर्भ, दशमूल तेल, इनका प्रयोग हम अवस्थानुरूप, प्रकृति अनुरूप और ऋतु अनुरूप कर सकते हैं। शूलाधिक्य में इंदुकांत तेल, एरंड तेल और प्रसारणी तेल का प्रयोग ये किया जाता है। कंप प्रधान अगर संप्राप्ति रही तो सहचार आदि तेल का प्रयोग ये किया जाता है। परंतु कंप प्रधान संप्राप्ति रही, पार्किंसंस का पेशेंट है और कंप प्रधान संप्राप्ति आपको दिखाई दे, कंप प्रधान और स्तंभ प्रधान ये अलग अलग संप्राप्ति या पार्किंसंस पे दिखाई देती है, तो ऐसे वक्त आप सहचर आदि का प्रयोग करें। अगर स्तंभ प्रधान रही तो आप दशमूल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग द्रव्यों या अलग अलग कल्पों का प्रयोग नस्यार्थ ये कर सकते हैं। शूल हो तो प्रसारणी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सुप्ति ये लक्षण अगर दिखाई दे तो सुप्ति तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रसारणी तेल का प्रयोग भी नमनेस अगर ज्यादा हो, चिमचिमायन हो तो आप कर सकते हो। स्नेहपान, जैसे कि अभी कहा गया, बाहुशीर्ष गतेवाते नस्यम पानम च औत्तर भक्तिकम। सर्वाइकल माइलोपैथी में स्नेहपान ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। निरुपस्तंभित वायु की चिकित्सा में निरुपस्तंभित वायु हो, मतलब संप्राप्ति वेदनार्थ हमें स्नेहपान का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहपान में सबसे अच्छा इसमें अगर कुछ है तो घृत की तौर पर देना होगा तो कल्याणक घृत, सुकुमार घृत, छागलाद्य घृत ये दे सकते हैं। परंतु इसमें अभी बहुत सारी कंपनियों के सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आते हैं। इसमें कैप्सूल क्षीरबला हो, कैप्सूल गंध तेल हो या कैप्सूल बला तेल हो, धानवंतरम तेल हो, ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पेशेंट अगर स्थूल है, प्रमेही है, तो उसमें धानवंतर तेल का प्रयोग करना चाहिए। अगर पेशेंट कृश है तो क्षीर बला का प्रयोग करना चाहिए। वातरक्त की चिकित्सा में शतपाकी, सहस्त्रपाकी, बला तेल का संदर्भ बताया गया है। अगर सूक्ष्म और सर ये दो गुणों की वजह से वात प्राधान्य है और द्रव और सर ऐसे गुणों की वजह से अगर रक्त दृष्टि है तो वात रक्त होता है। ऐसे वक्त सूक्ष्म और सर गुणों को काबू करने के लिए, वात के इन गुणों को काबू करने के लिए हमें देना पड़ता है, वो है शतपाकी क्षीरबला, सहस्त्रपाकी क्षीरबला, इस तरह का तेल पानार्थ देना पड़ता है। तो ऐसा अगर हम दे तो काफी फायदा होता है और डोज भी एडजस्ट हो सकता है। तो कैप्सूल गंध तेल या कैप्सूल क्षीरबला, शतपाकी बला तेल, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्थूल और प्रमेही अगर पेशेंट है तो धानवंतर तेल का प्रयोग पानार्थ हम कर सकते हैं। तो खाने के पश्चात हम नस्य देंगे। अगर हमें सर्वाइकल माइलोपैथी या मन्य स्तंभ में अगर हमें इसका प्रयोग करना हो तो, और ब्रूहण नस्य का ही प्रयोग इसमें करते हैं। जांगल मांस रस, इसके भी नस्य का प्रयोग दूध, शीतल जल, शर्करा जल, माशक्वात, बाल, बिल्व, क्षीर सिद्ध घृत, और एक इंपॉर्टेंट बात है वो है गुड़ मंजिरिया खपूरियो। गुड़ मंजिरिया खपूरो करके अष्टांग हृदय में
आया है जो अवबाहुक में मन्यास्तंभ में दे सकते हैं। गुड़ मंजीरा खपुरियो, इसके बारे में मैंने बहुत अलग अलग वैद्यों को पूछा था और बहुत अलग अलग मुझे उसके रेफरेंसेस ये बताए गए हैं। गुड़ मंजीरा खपुरियो ये एक द्रव्य है जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता था। उसका नाम है ओडोनिया वुडियर। आप अगर वाघ देसाई ये किताब पढ़ो, वाघ देसाई की किताब पढ़ो, तो उसमें इसका वर्णन है ओडोनिया वुडियर। ये वनस्पति आजकल नहीं मिलती। इसके बदले शल्यकी निर्यास हो, मोचरस सिद्ध जल हो, मोचरस सिद्ध दूध हो, ऐसे अलग अलग पर्यायी द्रव्य, पर्यायी कल्प बहुत सारे वैद्य यूज करते हैं। परंतु अगर आप गुड़ मंजीरा खपुरियो के बारे में सोचो तो उसका नाम है ओडोनिया वुडियर। वो ये वनस्पति आज से 100-125 साल पहले नष्ट हो चुकी है। तो इस तरह से इन द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्षिप्र, इंद्रबस्ती, कुरपर, आणी, अंश, हंसफलक, ऐसी मर्मों की पीड़न के बाद इसमें मन्यास्तंभ में काफी रिलीफ पाया जाता है। त्रिफला गुग्गुल 4 भाग और वातविध्वंस 2 भाग, मतलब 1 और 2, वातविध्वंस 1 भाग, 2 भाग त्रिफला गुग्गुल। इसका प्रयोग मन्यास्तंभ में काफी हद तक अच्छा होता है। ये चिकित्सा प्रदीप मामा गोखले जी का जो बुक है उसमें लिखा हुआ ये कल्प है और ये काफी रिजल्ट ओरिएंटेड कल्प है। 1 भाग वातविध्वंस और 2 भाग त्रिफला गुग्गुल। तो इसके साथ आप बलामूलक्वाथ ससंधव दे सकते हो। त्रिफला गुग्गुलुर मिश्रण ऐसा इसे कहा जाता है। 1 भाग वातविध्वंस, 2 भाग त्रिफला गुग्गुल, इसके साथ बलामूलक्वाथ ससंधव हम दे तो मन्यास्तंभे च शस्यते, यह हमें दिखाई देता है। ये रिजल्ट हमें दिखाई देता है। बहुत ही स्तंभ के साथ बहुत ही ज्यादा शूल, एक्सक्रूशिएटिंग पेन अगर रहा तो आप क्यूबाइटल फोसा में, कुरपर एवं अंश मध्य में, आप सिर्फ क्यूबाइटल फोसा में ही इसका तुरंत रक्त मोक्षण कर सकते हो। अगर इस चीज में रिफर्ड पेन बहुत ज्यादा रहा तो प्रताप लंकेश्वर का प्रयोग करना चाहिए। रिफर्ड पेन 1+ है, यूज प्रताप लंकेश्वर। अगर रिफर्ड पेन 2+ है तो गो फॉर विषतिंदुक। ऑन साइट पेन अगर होता है, सिर्फ पिन पॉइंट पेन, उस स्थान पर सिर्फ वेदना अगर होती है, अगर ये 1+ होती है तो विषतिंदुक और धतूर ऐसे इसके कल्पों का प्रयोग करें। अगर 2+ हो तो समीर पन्नग के साथ साथ ऐसे द्रव्यों का प्रयोग ये करना चाहिए। 3+ ऑन साइट पेन 3+ रहा तो समीर पन्नग प्लस अलग अलग विष द्रव्यों का प्रयोग एवं वनस्पति द्रव्यों का प्रयोग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल समीर पन्नग, उसके साथ कुचला और उसके साथ देवदारू, ये प्रयोग ऑन साइट पेन रहा तो आप ओरल यूज के लिए जरूर कर सकते हो। लाक्षादी गुग्गुलू का प्रयोग भी इसमें हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सर्वाइकल माइलोपैथी की केसेस में काफी अच्छा रिजल्ट ये दे सकते हैं और हमें देना चाहिए। ये केसेस अलग अलग डायग्नोसिस लेके अगर आपके पास आती है तो आप प्रोग्नोसिस अच्छे किसी दूसरे पैथी के डॉक्टर से जान लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए और संपूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा करें। काफी हद तक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये केस आयुर्वेद से पूरी ठीक हो सकती है। 1.5 महीने तक ऐसे उपचार करने के बाद
पेशेंट में 90-95% रिजल्ट मिला हुआ दिखता है. Now, this is a case of 69 years old man. Basically, he was having, say, hypertension, but under control with medication. इसकी प्रोस्टेटेक्टोमी हुई थी because of malignancy. एक 5-6 महीने पहले ही malignancy की वजह से ये हुआ था. Bilateral neck pain, particularly in suboccipital region and in lower back. Later, it radiates to right arm, almost to elbow. Neck pain also causing headache. Neck pain and headache do not awaken him at night, but neck was becoming stiff during the night. He can sit, watch the television without neck pain. But coughing, sneezing do not aggravate his symptoms. PSA, he was doing regularly, he was doing PSA, and it was significantly reducing after surgery. Surgery was performed around, say, 6-7 months ago. So that was the case. Basically, in the garden only, when he was gardening, he had caused neck pain and headache approximately 2-3 weeks before he came to us. Now, his blood pressure and everything was normal. Cervical spine movements were limited, and otherwise, other things were okay. Like neurologically, power was there, everything was normal. Other responses were normal. See, there were osteoarthritic changes in cervical spine, and osteoarthritic changes were there in this, and these are degenerative changes involving intervertebral joint with disc space narrowing at, say, C4, C5, C5, C6, C6, C7 level. Other things were okay, like, and the basically this X-ray was showing osteoarthritic changes. Only fear factor was there related to metastasis of prostate cancer. So that was the only fearful factor, but radiologists denied and told that it is only osteoarthritic change only, nothing related to the metastatic changes of prostate gland. In this particular case, the most important thing was what we call it as सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या साबित हुई. तो इस सब में अलग अलग लोकल ट्रीटमेंट्स हमने परफॉर्म की. सबसे अच्छी ट्रीटमेंट वाज विद्या कर्म. Whenever we were doing Vidya Karma, patient was relieving with the pain. Patient को बहुत अच्छी तरह से relief हुआ था, and patient was
painless for say 2-3 days. Every time, whenever we perform Vidya Karma, patient feels very comfortable after that. जैसे कि मैंने पहले कहा कि माइलोपैथी है तो उसमें आप कुकुटांड का प्रयोग कर सकते हो जो काफी प्रभावी है, पर दिस osteoarthritic advanced osteoarthrosis was his diagnosis. So in this case, the best treatment was Sadhya Shulahar. Treatment was Vidya Karma. Along with that, we tried to give him capsule Kshiravalla along with Lakshadi Gugul. But after few weeks, patient didn't continue with the medication, and he was absolutely relieved from pain. 7 से 8 बार कम से कम हमने विद्या कर्म की सिटिंग्स किए होंगे, और जहां सबसे टेंडर पॉइंट या पेन लगता है वहां पर हमने 26 नंबर की नीडल डालकर एक 10 सेकंड रख के बाद में निकाल दी थी, एंड पेशेंट गॉट वेरी गुड रिलीफ. After 6 weeks, we were trying to convince him for Tiktakshir Basti and all, but the patient denied and didn't come back. But he is fine. He is absolutely fine. So that is the case. In this particular case, this is 30-year-old female, and she was having excellent health, but she was having infected lymph gland, which was removed from her left groin at around say 15-16 years ago. That was the only past surgical history. Right now, she was having constant lower back pain radiating to back of head. See, lower back to lower neck to radiating to back of head, particularly frontal region, causing bilateral headache. Severity of neck pain and headache is very much related. Increasing her activities causes increasing in symptoms. Whenever she was doing some exercise or something, exertion, something like that, she was getting headache. Considerable pain radiates to left cervico-shoulder region and to posterolateral aspect of left arm. Left forearm is C6 level. Left arm, posterolateral aspect of left arm, C5 level. So last three fingers of her left hand were feeling cold, to feel cold. She was slightly depressed because of her symptoms. Various X-ray examination were done. No articular abnormalities were seen, and her pain syndrome was remained undiagnosed. She had faced vehicle accident, motor vehicle accident around say 5 years ago, and she was having she has undergone that whiplash injury. That's it. And X-ray were taken at that time. She was advised to wear soft collar at that time, and after say 2-3 days she was discharged after that motor vehicle accident. Resisted
shoulder movements to test for pain and weakness were normal on say right side, but on left side they were compromised. When asked to put her hands behind her back, internal rotation and adduction of shoulder, there was some restriction of left shoulder movement due to left cervico-shoulder arm pain. Resisted movements of right wrist were normal, but resisted movements of left wrist appeared to be weaker and aggravated pain in left arm. Resisted finger abduction, thumb flexion, extension were normal on right side, but it was weaker on left side. It got aggravated left arm pain because of that. Pain may have made power appear weaker on the left side. So that was very important. Hypoesthesia of left arm laterally was seen on ulnar surface of forearm. It was seen, and palpation of two hands to compare their temperature indicated objective findings of left third to fifth finger and lateral region of left hand. It was considerably cooler than right, which suggests autonomic nerve involvement. If one extremity is cooler than is considerably cooler than the other extremity, it suggests autonomic nerve involvement. This is very important. Slight muscle wasting was there at left arm and forearm level. Slight muscle wasting was there. Otherwise, everything was okay. See, this was disc bulge protrusion at say C5, C6 and C6, C7 level. When MRI was done, it was showing like that. Loss of normal lordosis is there. Just a minute. In this particular case, this was only related to intervertebral disc, only herniation. So cervical spine flexion and extension were done. Disc space height for any possible disc thinning was suggesting injury, and in this particular case, we have to do treatment related to Nirupastambhit Vayu. We started with Samir Pannag plus Vishatinduk plus Sariva in this particular case. Sariva and Devdar in this particular case. For neurological deficit, every time we use Sariva along with other Kalpa, along with other Rasakalpa, and Devdar mainly in case of tendon or ligament oriented disorders. So in this case, we started with Samir Pannag plus Kupilu. Samir Pannag 62.5 milligram, Kupilu 250 milligram, Kuchala 250 milligram, and Sariva and Devdar each 250 milligram for 3 times a day, along with Bala Mula Quat plus Saindav. And patient got good relief after that.
So these are some cases which we discussed. Now, Hello. hello, just a minute, huh, Amit? Okay. Okay. Sir. Can you see the slide? Yes, sir. Snehapan? Yes, sir. Shaman Chikitsa Snehapan. Okay. So there are three matra: Doshanukarshini, Manda Vibhramsha, and Snehan Bruhani matra. So in this particular Manya Stambha, let us see this Karpasasthadi tel. It is with Rasna, Devdar, Bala, Kushtha, Sarshap, Shunthi, Shatava, Pimpli, Mool, Chavya, Shigru, Punarnava, and Kshir. Mainly it is used in Avabahu and Manyastambha, Nasya and Abhyanga. For using Nasya and Abhyanga, Bhojanoparanta Nasya is done. Kotam Chukyadi, it is Kushtha, Shunthi, Vacha, Shigru, Rason, Sarshap, Rasna, Devdar. It is very ये बहुत ही उष्ण ऐसा कल्प होता है और स्तंभ प्रधान संप्राप्तियों में, वातव्याधि के स्तंभ प्रधान संप्राप्तियों में इसका प्रयोग ये नस्य और अभ्यंगार्थ किया जाता है। केतक्यादि तेलम, केतकी मूल बला अतिबला, इसका प्रयोग अस्थिगत वात की चिकित्सा में किया जाता है। ऑस्टियोआर्थ्रोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इन दोनों में इसका प्रयोग ये किया जाता है। शतावरी तेल, शतावरी तेल में बिल्व, अग्निमंथ, शोणाक, पाटला, पारिभद्र, प्रसारिणी, अश्वगंधा, बृहति, कंटकारी, बला, अतिबला, शोधौष्ट्र, पुनर्नवा ऐसे द्रव्य दिए जाते हैं और इसमें सबसे प्रधान ये शतावरी होता है। दंतशूले, हनुस्तंभे, मन्यास्तंभे, गलग्रहे, ऐसे गलग्रह और मन्यास्तंभ इस तरह के अगर क्लिनिकल कंडीशन रही तो शतावरी तेल का प्रयोग अभ्यंग और नस्यार्थ किया जाता है। प्रसारणी तेल, कुब्जम, स्तिमितम, पंगुत्व, गुरुद्रसी, ऐसे वक्त शिरो ग्रीवा स्तंभम व अपि नियच्छति, हनु पृष्ठ शिरो ग्रीवा स्तंभ व अपि नियच्छति, ऐसा प्रसारणी तेल के बारे में, स्तंभ के बारे में लिखा गया है। माशादी तेल, ये इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड बाय अस। हमेशा याद रखें, हस्तकंपे, शिरकंपे, विश्वाची, अवबाहुके, शस्तम, कलाय खंजे, इन क्लिनिकल कंडीशंस में पान, अभ्यंग, बस्ती भी इसमें दिया जाता है। माशादि तैलम इदम श्रेष्ठम ऊर्ध्व जत्रु गदापहम, माशादि तेल
ये ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियों में दिया जाने वाला बहुत ही अच्छा ऐसा कल्प है। अगर आपको कुछ भी नहीं सूझता है तो माशादी तेल या बला तेल, इन दोनों का प्रयोग आप कर सकते हो। नस्येन बस्ति विधिना परिसेचनेन अन्यात् कटी जघन जानु रुजश्च सर्वाः। नस्य दो बस्ती दे परिसेचन के लिए यूज करे तो कटी जघन जानु इसकी रुजा कम हो जाती है। कलाय खंज पांगुल्य गुर्ध्रसी अवबाहुक, इसमें पाने बस्तौ तथा अभ्यंगे नस्ये कर्णाक्षी पूरणे। कर्ण पूरण अगर रेगुलरली करते हैं तो मन्यास्तंभ होने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए माशादी तेल का प्रयोग आप कलाय खंज पांगुल्य गुर्ध्रसी अवबाहु में पान बस्ती अभ्यंग नस्य कर्णपूरण इन सभी के लिए जरूर करें। ये माशादी तेल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। लाक्षादी तेल, ये सब साउथ की अलग अलग कंपनियों के मिलते भी है। अवबाहुक, विश्वाची, खंज, पांगुल्य, मन्याग्रह, ऐसी कंडीशंस में नस्य और पानार्थ, अभ्यंग, परिसेचनार्थ लाक्षादी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे अभी कहा वैसे, और बहुत वेदना रही तो मुरी वेदना, सुक्ति रही तो सुक्ति तेल का प्रयोग ये हो जाता है। एतत्स दाहम सरुजम सशोफम रक्तानुगम। दाह, सरुज, सशोफ, रक्तानुगम, मैंने ऐसी केसेस भी बताई जिसमें तुरंत पहले बर्निंग सेंसेशन हुआ विप्लैश इंजुरी के बाद। बलागुड़चरी तेल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस। अभ्यंतर और बाह्य इनका प्रयोग करें। बाहु शीर्षगत हो तो भोजन पूर्व और अधोना भी हो तो भोजनोपरांत इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी में आप छागलाद्य घृत को हमेशा याद रखें। अश्वगंधादि घृत का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। कारस्कर घृत ये हम अभी यूज कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा, कारस्कर घृत मिलता है बाजार में, आप उसका जरूर प्रयोग करें। संध्या श्रिते शोक सहिते वात रक्ते एवं विशेषण उपयुज्यते एतद् घृतम्। सर्वामयांतक घृत मन्यास्तंभे हनुस्तंभे ग्रीवास्तंभे च जिह्वके पुरुस्तंभे करस्तंभे तथा श्वास बलासके। इस तरह से कारस्कर के चूर्ण का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। बला के कुछ कल्पों के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। अलग अलग बला के क्वाथ है और उसकी रोगग्नता भी बताई गई है, पर ये सभी ऊर्ध्व जत्रुगत वात व्याधियों में यूज करने वाले कल्प है। बला कनक पत्रादि क्वाथ चित्त भ्रंशादि विकारों में उपयुक्त। बला कुलत्थादि कषाय ये मिलता है, बला कुलत्थादि कषाय ये मिलता है। ये पक्षवात में इसका प्रयोग होता है। बला बिल्वादि कषाय ये अरुचि में इसका प्रयोग होता है। बला दूरालभादि कषाय सूती का ज्वर में इसका प्रयोग है। बला दूरालभा, मुस्ता, परपट, धान्य, मुद्ग, शुंठी और रस्व पंचमूल, लघु पंचमूल, इनके प्रयोग से सूती का ज्वर नष्ट हो जाता है।
पोस्ट नेटल आर्थ्रोपैथी में ये कषाय यूज होता है। बला गोधूम आदि कषाय, बला गोधूम, बिल्व, अग्निमंथ ऐसे अलग अलग द्रव्यों को लेकर बनाया हुआ क्वाथ हृदरोग पर अच्छा कार्य करता है। बला गोधूमादि कषाय दूसरा है, वो सिराग्रह निवारणार्थ, ये वेरिकोज वेन्स में यूज किया जाता है। बला जीरक आदि कषाय श्वास और कास में दिया जाता है। सर्वेषां ब्रूहणे ही अल्पः शक्यश्च प्रायशो भवेत्, नात्यर्थम शमने अपायो भृशो अशक्यश्च कल्पन। सभी श्वास कास के रुग्णों में हमें ब्रूहण करना चाहिए, कभी भी लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। बलादि कषाय पित्त कफ ज्वर में, पैतिक कास में, और लास्ट का जो बलादि कषाय है, बला पुनर्नवा, एरंड, बृहतिद्वय, बोक्षुर, हिंगू और लवण, ये वात व्याधि नाशक कषाय है। कितने सिर्फ बला के कितने अलग अलग कल्प हम देख सकते हैं। देखिए, बलादि कषाय गर्भिणी शूल और स्राव में भी यूज किया जाता है। पहले दिन सूतिका अवस्था में पहले दिन कोष्ठ शोधनार्थ बला, शुंठी और एरंड का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहा है। बला मूल क्वाथ विथ शुंठी का प्रक्षेप, शुंठी और एरंड स्नेह का प्रक्षेप, यह हमें कोष्ठ शोधनार्थ देना चाहिए। ये देने के बाद गर्भाशय का जो विस्फारण हुआ है वो जल्दी कम होने में और जल्दी अपनी जगह आने में कामयाब हो सकता है। इसीलिए ये बला, नागर और एरंड का क्वाथ ये दिया जाता है। मूत्र बाहुल्य नाशक ऐसा बला, अतिबला और रस्व पंचमूल, इसका क्वाथ ये दिया जाता है। रक्त प्रदर में भी बला का प्रयोग ये किया जाता है। बलामूल, कुश, वाट्यालक मूल और तंडुल जल, ऐसा रक्त प्रदर में ये दिया जाता है। मदात्य में बला द्राक्षादि क्षीर यह दिया गया, सिर्फ बला, द्राक्षा, शतावरी, सीता चूर्ण के साथ। डिहाइड्रेशन हुए पेशेंट में, रस क्षय में बला द्राक्षादि क्षीर का प्रयोग जरूर करें। हम अलग अलग मन्यास्तंभ के पेशेंट में जहाँ पे मसल वेस्टिंग हो वहां पर बला, द्राक्षा, शतावरी, सीता, इसका क्वाथ और सीता चूर्ण ये देते हैं। दुग्ध में भी इसका प्रयोग ये किया जाता है। खल्ली मतलब अवमोटनी वत पीड़ा, इसमें बला, नाग, बलादि कषाय, बला, नाग, बला, दारू, सैरेय, पुनर्नवा, दशमूल, अमृता, ये खल्ली के लिए दिया जाता है। क्रोष्टुक शीर्ष में सैरेयक, बलामूल, शुंठी, गुड़ और सैंधव, सिर्फ ये कषाय काफी अच्छा काम करता है। बला, रसोन, गुड़ची, देवदार, सहचर और रासना, इसका क्वाथ, तैल युक्त क्वाथ, इसका क्वाथ कर उसमें तेल प्रक्षेप डालकर देने से ये क्रोष्टुक शीर्ष में कार्य करता है। बला शतावरी आदि कषाय भक्त द्वेष नाशक है। बला सहचर आदि कषाय वातशामक है ही, और दूसरा बला सहचर आदि कषाय वो वात रक्त में दिया जाता है। इस तरह से अलग अलग आपको बला के क्वाथ मिलेंगे। प्रसारण्यादि कषाय वातव्याधि अवबाहुक में इसका प्रयोग होता है। प्रसारणी, माश, बला, रसोन और रासना, कफग्न है ये। बलामूल के साथ प्रसारणी, रासना, लशुन और नागर, ये भी अवबाहुक और मन्यास्तंभ में दिया जाता है। इसके साथ साथ सिर्फ प्रसारणी देते वक्त और एक याद रखिए, ये कफग्न नहीं है, पर एक याद रखिए, नमनेस अगर ज्यादा हो तो प्रसारण्यादि क्वाथ का प्रयोग आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रसारणी और शतावरी ये दोनों का प्रयोग आप
मूत्र अवरोधक इस तरह से कर सकते हो। शूल प्रधान संप्राप्ति रही तो रासना सप्तक देना चाहिए। स्फुरण प्राधान्य अगर रहा तो सहचर आदि का प्रयोग करें, और शोष प्रधान अगर आपको संप्राप्ति दिखाई दे तो आप धान्वंतरम का प्रयोग करें। गुगुलु में शूल प्रधान संप्राप्ति में महायोगराज गुगुलु का प्रयोग करें। स्फुरण प्रधान रहा तो त्रयोदशांग, और शोष प्रधान रहा तो पंचामृत लोह गुगुल प्रयोग करें। ये सब होने के बाद, पाचन होने के बाद, जब हमें रसायन चिकित्सा करने की जरूरत पड़ती है तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रसायन कल्प इज लेह और क्षीरपाक। तो क्षीरपाक आप किसी भी क्रॉनिक डिसीज में चालू करें, पाचन होने के बाद तुरंत चालू करें, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। 3 ही क्षीरपाक आप याद रहे और सभी वात व्याधियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। शूल प्रधान संप्राप्ति रही, वात प्रधान संप्राप्ति रही तो देना रसोन क्षीरपाक। कफ वात प्रधान संप्राप्ति रही तो देना, स्फुरण प्रधान संप्राप्ति रही तो देना अश्वगंधा। शोष प्रधान यह संप्राप्ति रही और वात प्रधान संप्राप्ति रही तो बला और नागबला इसका क्षीरपाक देना काफी उचित है। एकदम फैंटास्टिक रिजल्ट आपको इसका मिलेगा ही। बाधिर्य यह लक्षण दिखाई दे तो गंधर्वास्त्यादि, भद्रदार व्याधि, सहचरादि इनका प्रयोग ज्यादा करें। ये वात कफ दृष्टि से बाधिर्य ज्यादा बढ़ता है, और इसमें बला गुड़ुचादि, पिंड तेल इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। दाह प्रधान संप्राप्ति में माशात्मक गुप्तादि, शतावरियादि इनका प्रयोग करें क्योंकि ये वात पित्त प्रधान संप्राप्ति होती है। यष्ट्यादि तेल का अनुवासनार्थ प्रयोग करें। शोष प्रधान संप्राप्ति में बलादि का प्रयोग करें, ये वात प्रधान संप्राप्ति है। और माश तेल, शोष प्रधान संप्राप्ति में माश तेल इज ड्रग ऑफ चॉइस। इस तरह से हम अलग अलग कल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। नस्य हो, बाकी चीजें हो, ये हम इसमें ट्रीटमेंट अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग द्रव्य हम यूज कर सकते हैं और दोषों के हिसाब से ट्रीटमेंट बदलती है। फर्स्ट इज वहां पे जाने वाली, वहां पे गामित्व होने वाली वनस्पति या कोई भी द्रव्यों को चूज करना, और उसके बाद आप दोष प्रधान संप्राप्ति पर ध्यान दें। इस तरह से हम अलग अलग केसेस ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी केस आने के बाद पहले उसकी प्रोग्नोसिस देखिए। अगर ये प्रोग्नोसिस हमें नहीं समझती तो हम किसी को पूछ सकते हैं कि इसकी प्रोग्नोसिस क्या है। प्रोग्नोसिस के बाद आप आयुर्वेदिक संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए इस पेशेंट की चिकित्सा चालू करें, ऐसे पेशेंट्स की चिकित्सा चालू करें और फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये करते वक्त क्लिनिकल असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी जो शास्त्र में है ही नहीं या कुछ अलग ही है कि ये वनस्पति इस तरह से मरुभूमि में खड़ी है इसीलिए ऐसा ऐसा होगा शरीर में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसका जो रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, पांच भौतिकत्व है, उस हिसाब से ये ट्रीटमेंट होती है। तो वो वनस्पति कैसे दिखती है इसके ऊपर कुछ नहीं होता। उस वनस्पति का जो कार्य, रोगाग्नता ग्रंथोक्त बताई गई है, उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट करते जाइए। एक बात हमेशा याद रखें, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको दूसरे को अच्छी तरह से सिखाने के लिए आ गया तो समझ लेना कि वो आपको वो सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझा है। ऐसे कुछ अलग ही जो शास्त्र में है ही नहीं, ऐसे अलग ही गूढ़ कुछ बताने लगे जो कि एज अ साइंस स्टूडेंट हमें बिल्कुल भी
नहीं समझता या बिल्कुल भी ग्रास्प ही नहीं होता, तो दैट इज रॉन्ग। तो याद रहे, ऐसे अलग ही किसी ने कुछ बताना चालू किया कि ये द्रव्य ऐसा है वैसा है, तो आप नहीं सुनना। उसका रसवीर्य विपाक पांचभौतिकत्व गामित्व के अनुसार, प्रभाव के अनुसार आप उसको स्टडी करना। रोगग्नता ये हमेशा देखना और उसके बाद आप ट्रीटमेंट में उसका युक्ति पूर्वक जरूर प्रयोग करें। आपने मन्या स्तंभ के अलग अलग 10-12 अलग अलग केसेस देखे जिसमें नस्य और भोजनोपरांत स्नेहपान इसका विवेचन भी देखा। विद्या कर्म की एक ही केस हमने इसमें आपको बताई, पर बाकी आप अभी तक जो जॉइंट्स हुए उस हिसाब से आपको संप्राप्ति, स्थानिक चिकित्सा, सार्वधिक चिकित्सा, इन चीजों में डिफरेंस क्या है, ए वायु कौन सा है, बी वायु कौन सा है। अवस्थापाक में तैयार होने वाला ए वायु है जो पोषक वायु है, और बी वायु जो है जो उस स्थान में, समझ लीजिए मन्या स्थान में है, वो पोषक, उसका वो पोषण करता है। अवस्थापाक में तैयार हुआ वायु ये मन्यागत वायु का पोषण करता है। इसीलिए ए वायु की चिकित्सा ये सार्वदैहिक चिकित्सा हुई जिसमें विरेचन, बस्ती ऐसी चीजें आएंगी। तो मन्यागत वात दोष दुष्टि के लिए हमें स्थानिक चिकित्सा, उपनाह हो, स्वेदन के अलग अलग प्रकार हो, वहां पे लेप हो, अग्निकर्म हो, विद्या कर्म हो, इन तरह की जो चिकित्सा है ये सब हमें आ जाती है, मतलब बी वायु के अंतर्गत आ जाती है, पोष्य वायु के अंतर्गत आ जाती है। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विथ अस टुनाइट। आज बहुत ही लेट हुआ, फिर भी आप सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चंस भी पूछे। मुझे बाद में व्हाट्सएप पे बहुत लोग अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनको मैं फोन करके फिर आंसर्स बताता हूँ। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये पूरी सीरीज हमारी सुनी। ये पूरी सीरीज में हमने अलग अलग 8 अलग अलग जॉइंट्स लिए और बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी ने इन सबको पढ़ा। इसीलिए हम आप सभी के आभारी हैं। एक ही मिनट। आज की ये सीरीज यहाँ पर ही खत्म हो रही है एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस गिवन टू मी। अगर इस सभी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको कभी भी कोई भी केस डिस्कस करनी हो तो हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं या फोन करके भी मैं आपको बता सकता हूँ। जितना मुझे आता है और समझता है उतना मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। सिर्फ इसी सब्जेक्ट में कंटिन्यूअस काम या कंटिन्यूअस ऐसी केसेस देखने के बाद आप थोड़ा प्रिसीजन की तरफ बढ़ सकते हो। एनीवे, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू ऑल। श्रेयस ई लर्निंग एकेडमी इन्होंने काफी अच्छी तरह से कोऑपरेट करके इतनी रात तक हमारा साथ दिया और टेक्निकल सपोर्ट और बाकी भी सपोर्ट वो कंटिन्यूस देते रहे। इसीलिए श्रेयस ई लर्निंग का भी मैं सहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. On behalf of Shreyas E-Learning Academy and all delegates also, sir, we are very much thankful. It is quite rightly said that our eyes can see only what our brain knows. ऐसा बहुत बार होता है सर कि आपने
जो केसेस शेयर की वो शायद हम में से भी कई लोगों के ओपीडी में आती होगी, बट उसको किस एस्पेक्ट से देखना है या वो केसेस, वो डिसीज एग्जिस्ट भी करता है, जब तक हम उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है तब तक हम उसे उस दृष्टिकोण से देखते नहीं है या इवेल्युएट नहीं करते हैं। सो हमें ये पूरा विश्वास है श्रेयस ई लर्निंग एकेडमी को कि जो भी डेलीगेट्स ने ये सीरीज अटेंड की है उनके विजन में एक डिसीज, एक सिम्टम्स को, जॉइंट्स रिलेटेड सिम्टम्स को देखने का विजन अभी काफी अलग तरीके से हुआ रहेगा, इम्प्रोवाइज हुआ रहेगा। एंड आई विल सजेस्ट देम कि वो अपने बाकी कलीग्स के साथ भी अपना नॉलेज शेयर करें। सो वंस अगेन सर, ऑन बिहाफ ऑफ श्रेयस ई